حیدرآباد پولیس کمشنریٹ کے تحت بڑے پیمانے پر پولیس انسپکٹرز کے تبادلے عمل میں ہیں۔ شہر کے پولیس کمشنر وی سی سجنا نے پیر کے روز ایک ساتھ 54 پولیس انسپکٹروں کے تبادلوں کے احکامات جاری کیے۔ خاص طور پر سینٹرل کرائم اسٹیشن اور سائبر کرائم شعبے سے بڑی تعداد میں افسران کے تبادلے کیے گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو افسران کافی عرصے سے ایک ہی شعبے میں خدمات انجام دے رہے تھے، انہیں انتظامی ضروریات کے پیش نظر تبدیل کیا گیا۔ 26 سرکل انسپکٹرز کو فوری طور پر سی پی او آفس میں رپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی۔ سائبر جرائم میں اضافے کے پیش نظر پولیس کمشنر اس شعبے میں نئی اصلاحات نافذ کرنا چاہتے ہیں اور ان تبادلوں کے ذریعے کارکردگی کو بہتر بنانا ان کا مقصد ہے۔ احکامات کے مطابق 26 انسپکٹرز کو فوری طور پر ریلیو کرتے ہوئے اگلے احکامات تک سٹی پولیس کمشنر کے دفتر میں رپورٹ کرنے کے واضح احکامات دیے گئے ہیں۔ خاص طور پر بنجارہ ہلز، فریم نیک اور ایبٹس جیسے اہم علاقوں کے انسپکٹرز کو تبدیل کیا گیا، جبکہ سائبر جرائم کی روک تھام کے لیے اس شعبے میں نئے افسران تعینات کیے گئے۔ کویتا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کی اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے داؤس کے دورے کو محض دکھاوا قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہوائی جہاز میں جانا اور واپس آنا ہی اس سفر کا حاصل رہا ہے، جبکہ 2 برس گزرنے کے باوجود وزیر اعلیٰ یہ بتانے سے قاصر ہے کہ تلنگانہ کو حقیقت میں کیا ملا۔ کویتا نے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ داؤس ورلڈ اکنامک فورم سمٹ کے دوران 2024 کے مالی سال میں 40,232 کروڑ روپے اور 2025 میں 1,73,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری آئی، مگر یہ سب محض تشہیر تک محدود رہا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ حال ہی میں حیدرآباد میں کروڑوں روپے کے عوامی سرمایہ سے منعقدہ تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ میں بھی حکومت نے 5,75,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے دعویٰ بڑے زور شور سے کی۔ صدر تلنگانہ جاگرتی نے کہا کہ داؤس سمٹ اور تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ کے دوران جن یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے گئے، ان میں سے کتنی صنعتیں حقیقت میں زمین پر اتری اور ان کے ذریعے کتنے لوگوں کو روزگار حاصل ہوا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا کہ ان تمام دعووں کی حقیقت واضح کرنے کے لیے ایک جامع رپورٹ جاری کیا جائے تاکہ عوام کو اصل صورت حال معلوم ہو سکے۔ بی جے پی کے قومی صدر کے عہدے کے لیے آج یعنی 19 جنوری کو نامزدگی کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق بی جے پی کے قومی کارگزار صدر نتن نبین کا بلا مقابلہ قومی صدر منتخب ہونا تقریباً طے مانا جا رہا ہے۔ امکان کم ہے کہ کوئی دوسرا لیڈر اس انتخابی عمل میں حصہ لے گا، جس کے باعث ان کا انتخاب متفقہ طور پر ہو سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ نبین خود نامزدگی داخل کرانے کے لیے بی جے پی کے قومی دفتر نہیں جائیں گے۔ ان کی جانب سے پارٹی کے سینئر لیڈر نامزدگی کی تجویز بی جے پی کے قومی دفتر میں پارٹی کے انتخابی افسر کو سونپیں گے۔ ان لیڈروں میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر داخلہ امت شاہ، مرکزی وزیر سمیت کئی سرکردہ لیڈر شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق انتخابی افسر کو دیے جانے والے تجاویز میں سب سے پہلی تجویز پر وزیر اعظم نریندر مودی کے دستخط ہوں گے۔ شہر نظام آباد ایم پی جے کے صدارتی انتخابات ریاستی صدر ایم پی جے عبدالمجید شعیب صاحب کی ہدایت پر 17 جنوری بروز ہفتہ دوپہر 2:30 بجے منعقد ہوئے۔ ان انتخابات کے آبزرور پروفیسر عبدالرحمان داؤدی جبکہ الیکشن انچارج انور خان رہے۔ نظام آباد شہر کی صدارت کے لیے انتخابات میں اپنے حق رائے کا استعمال کرنے والے اہل 60 ارکان کے من جملہ 46 ارکان نے شرکت کی۔ کثرت آراء سے عبدالحلیم خمر نظام آباد ایم پی جے صدر کے حیثیت سے منتخب ہوئے۔ اس کے علاوہ جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے محمد سجاد احمد اور نائب صدر کے طور پر رشیدہ بیگم نظام آباد صدر ہیومن رائٹس انتخاب عمل میں لایا گیا۔ کاماریڈی ضلع کے راما ریڈی پولیس اسٹیشن حدود میں غیر قانونی دھماکہ خیز مواد کے معاملے میں پولیس نے بڑی کارروائی انجام دیتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کر لیا اور بھاری مقدار میں جیلیٹن اسٹکس اور دیگر سامان ضبط کیا۔ یہ بات ضلع ایس پی ایم راجیش چندر نے پریس کانفرنس کے دوران بتائی۔ ایس پی کے مطابق 18 جنوری کی صبح گاڑیوں کی تلاشی کے دوران ایک مشتبہ 2 ویلر سے 2 افراد کو پکڑا گیا، جن کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ پوچھ تاچھ میں انکشاف ہوا کہ یہ مواد غیر قانونی طور پر نندی پیٹ گاؤں سے حاصل کر کے گاندھاری منڈل میں چٹانیں اڑانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ بعد ازاں تیسرے ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ایک لائسنس یافتہ سپلائر مفرور ہے۔ ضلع ایس پی نے خبردار کیا کہ دھماکہ خیز مواد کا غیر قانونی استعمال عوامی جان و مال کے لیے سنگین خطرہ ہے اور اس طرح کے سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ریاست تلنگانہ میں بلدی انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ حکمراں کانگریس نے ان انتخابات کے لیے وزراء کو الیکشن انچارج مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق 15 وزراء 15 پارلیمانی حلقوں کے نگران رہیں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ جلد ہی ریاست میں بلدی انتخابات ہونے والے ہیں۔ ان انتخابات میں متعلقہ تحفظات کو پہلے ہی قطعیت دی جا چکی ہے اور توقع ہے کہ عنقریب اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔
ये भी कहा जा रहा है कि बल्दी इंतखाबात का फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में इनेकाद अमल में आएगा। जहां तक मुख्तलिफ बल्दियात के लिए निगरान वज़रा का सवाल है, आदिलाबाद के लिए हुकूमत के मुशीर सुदर्शन रेड्डी, मलकाजगिरी के लिए कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, चेवड़ला के लिए डी श्रीधर बाबू, करीमनगर के लिए डी नागेश्वर राव, खम्मम के लिए कोंडा सुरेखा, महबूबाबाद के लिए पूर्णम प्रभाकर, महबूबनगर के लिए दामोदर राज नरसिम्हा, जहीराबाद के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन, मेदक के लिए विवेक वेंकट स्वामी, नागर कर्नूल के लिए वी श्रीहरि, नलगुंडे के लिए ए लक्ष्मण कुमार, भुवनगिरी के लिए सीता का, निजामाबाद के लिए उत्तम कुमार रेड्डी, वरंगल के लिए पी श्रीनिवास रेड्डी और पेद्दापल्ली के लिए जोपल्ली कृष्णा राव को निगरान मुकर्रर किया गया है। हुकूमत ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के मेयर्स और म्यूनसिपल काउंसिल्स के चेयरपर्सन के उहदों पर तहफ़्फ़ुज़ात को खर्चियत दे दी है। तवक्को की जा रही है कि शहरी मजालिस से मुकामी के इदारों के इंतखाबात बहुत जल्द मुनक़िद होंगे। कमिश्नर एंड डायरेक्टर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर में सियासी नुमाइंदों की मौजूदगी में ड्रा के जरिए तहफ़्फ़ुज़ात का तयन किया गया। बताया गया है कि मजालिस मुकामी चुनाव के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगा और फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में रायदही होगी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों में हैदराबाद, निजामाबाद, खम्मम और नलगुंडा के मेयर्स का ओहदा ख़वातीन के लिए मुख्तस किया गया है। इन कॉरपोरेशंस में मेयर के ओहदे को वुमेन जनरल के लिए महफूज किया गया है। तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल या कार चलाना इंतहाई ख़तरनाक साबित होता है। हैदराबाद के नरीनमेट पुलिस हदूद में ऐसा ही एक वाक़या पेश आया, जहां एक तेज़ रफ्तार कार ठहरी हुई कार से टकरा कर उलट गई। ये वाक़या दीनदयाल नगर की एक तंग गली में पेश आया। अगरचे हादसा ख़तरनाक था, लेकिन खुशकिस्मती से कोई ज़ख्मी या हलाक नहीं हुआ। ताहम ड्राइवर के खिलाफ BNS की दफ़ा 106(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर नशे में नहीं था। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने BRS की सिकंदराबाद बचाओ के नारे के तहत तहरीक की शदीद मुखालफत की है। पूनम प्रभाकर ने सवाल किया कि BRS दौर में जब 33 अज़ला तश्कील दिए गए थे, उस वक्त सिकंदराबाद ज़िले की तश्कील का ख्याल क्यों नहीं आया। अब जबकि तेलंगाना हुकूमत 9 तश्कील शुदा अज़ला के हदूद को साइंटिफिक अंदाज में मुतय्यन करने की मसाई कर रही है, BRS ने सिकंदराबाद के नाम पर गैर ज़रूरी तहरीक का आगाज़ किया है। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद बचाओ तहरीक का बुनियादी मकसद सियासी मफादात का उसूल है। उनका ये भी कहना था कि तेलंगाना हुकूमत सिकंदराबाद के साथ नाइंसाफ़ी या जानिबदारी का रवैया इख्तियार नहीं करेगी। उन्होंने KTR से सवाल किया कि BRS दौर में नए अज़ला की तश्कील के वक्त सिकंदराबाद का ख्याल उन्हें क्यों नहीं आया। पुराना पुल दरवाज़ा फिर वाराना तशद्दुद केस के सिलसिले में कामाठीपुरा पुलिस ने कमिश्नर ट्रांसपोर्ट के साथ एक मुश्तरका कार्रवाई में 9 अशरार बशमूल एक खातून को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें पीर को नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट की अदालत में पेश किया जाएगा। 14 जनवरी की शब पुराना पुल दरवाजे के करीब एक शख्स की जानिब से मंदिर में बेहुरमती के वाक़े पर अशरार ने करीब में वाक़ चिल्ला मुबारक और कुबूर को मिस्मार कर दिया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। अशरार की जानिब से खबरों को मिस्मार करने और मजहबी परचम की बेहुरमती को रोकने में पुलिस की नाकामी के बाद अशरार के खिलाफ कार्रवाई में शिद्दत पैदा कर दी गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस की बुनियाद पर इंटेलिजेंस और एसबी ने तकरीबन 30 से ज़ायद अशरार की निशानदेही कर ली और उनकी गिरफ्तारियाँ की जा रही है। कामाठीपुरा पुलिस में दर्ज अलहदा मुकदमात में अशरार में एक सरगर्म खातून की निशानदेही की गई थी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अशरार का ताल्लुक जियागुड़ा और पुराना पुल के अतराफ व अकनाब के इलाकों से है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने TRS को शिकस्त देने का अहद किया है। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि वो तेलंगाना में NTR और YSR को रोल मॉडल्स बनाकर बहबूदी स्कीमात पर अमलवारी की कोशिश कर रहे हैं और इस मामले में मुतालिका वज़रा उनसे भरपूर ताउन कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर का ये भी कहना था कि अगरचे रियासतें मुख्तलिफ हैं, जमातें मुख्तलिफ हैं और उनके अरकान ख़ानदान मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता हैं, लेकिन NTR और डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी को रोल मॉडल समझना चाहिए। रेवंत रेड्डी के मुताबिक वो फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि NT रामाराव एक अजीम लीडर थे जिन्होंने दुनिया भर में तेलुगु आवाम के इज़्ज़त नफ्स की अहमियत वाज़ेह की और उसका तहफ़्फ़ुज़ किया। NTR ने गरीबों के लिए 2 रुपये किलो चावल स्कीम शुरू की। उनका मकसद गरीबों की भूख मिटाना था, जबकि राजशेखर रेड्डी ने किसानों और गरीबों की बहबूद के लिए सख्त मेहनत की। दोनों कायदीन को भुलाया नहीं जा सकता। मिस्टर रेवंत रेड्डी खम्मम के मुर्दुलापल्ली में एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी मुल्क के लिए बरतानवी साम्राज्य से ज़्यादा खतरनाक है और मुल्क की तमाम जमहूरी और अवामी ताकतों को नरेंद्र मोदी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ जद्दोजहद करनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने आज खम्मम में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की 100 साला तासीसी तकारीब से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में कम्युनिस्ट पार्टियों की मुहिम से मुतासिर होकर कांग्रेस ने भी जद्दोजहद की और अवाम दुश्मन हुकूमत का सफाया किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में फाशिस्ट नज़रियात की हामिल ताकतों के खिलाफ हर किसी को जद्दोजहद का अहद करना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के क़याम के 100 साल की तकमील पर खम्मम में 3 रोज़ा तकारीब का एहतमाम किया गया है। तकारीब के आखिरी दिन जलसे-आम मुनक़िद हुआ जिसमें हज़ारों की तादाद में बाएं बाजू कारकुनों ने शिरकत की। तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश से भी कायदीन और कारकुन तकारीब में शरीक हुए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी में कांग्रेस पार्टी के साथ कम्युनिस्ट पार्टी के रूल का जिक्र करते हुए मुत्तहदा जद्दोजहद के नतीजे में मुल्क को आज़ादी हासिल होने का जिक्र किया। अराज़ियात के रजिस्ट्रेशन के लिए स्टैंप ड्यूटी और फीस की अदायगी में धोखाधड़ी के बाद महकमे माल में शदीद बहरान की सूरत हाल है और हुकूमत ने 52 करोड़ के फुट की तहक़ीक़ात का ऐलान कर दिया है। बताया गया है कि इंतहाई नफासत से महकमे माल के अहदेदार और धोखेबाजों ने महकमे को 52 करोड़ का नुकसान पहुँचाया है। वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने गुज़िश्ता 2 वर्षों में 52 लाख जायदादों के रजिस्ट्रेशन मामले में महकमे जाती तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। ज़राए के मुताबिक रियासत में महकमे माल को आमदनी को 52 करोड़ के नुकसान की निशानदेही के साथ अमले में हैरत की लहर दौड़ गई है। इब्तदाई इंकशाफात के मुताबिक जमगांव, यादाद्री और रंगारेड्डी में अराज़ियात के रजिस्ट्रेशन में बेखाजियों की निशानदेही की गई, जबकि रंगारेड्डी, संगारेड्डी, मलकाजगिरी और यादाद्री भुवनगिरी में मज़ीद बेखाजियों का अंदेशा है। बीआरएस पार्टी छोड़ने के बाद केसीआर की बेटी के कविता रियासत की सियासत में अपनी खुद की पहचान और शिनाख्त बनाने की जानतोड़ कोशिश कर रही हैं और इस मकसद के लिए वो एक अलहदा सियासी जमात कायम करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं और उन्हें उम्मीद है कि अगले असेंबली इंतखाबात में वो एक बड़ी सियासी ताकत बनकर उभरेंगी। फिलवक्त वो सियासी हिकमत अमली तय करने में मसरूफ़ हैं। कविता जन स्वराज पार्टी के सरबराह और इंतखाबी हिकमत साज प्रशांत किशोर से मुलाकातें कर रही हैं। ये भी इत्तलात हैं कि प्रशांत किशोर पिछले 2 माह में 2 मरतबा हैदराबाद आ चुके हैं और कविता से मुलाकातें की हैं। संक्रांति त्यौहार के दौरान हैदराबाद में कविता और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई है, जिसमें तेलंगाना के अवाम के लिए एक अलहदा सियासी जमात के क़याम को लेकर तफसीली तबादिल ख्याल हुआ। वाज़ेह रहे कि कविता ने, जो तेलंगाना जागृति समिति की सरबराह भी हैं, अलहदा तेलंगाना तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात में निज़ामाबाद से कामयाबी हासिल की थी। ताहम 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में उन्हें बीजेपी उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद के मुकाबले शिकस्त का सामना करना पड़ा था। हैदराबाद के आराम घर इंटरसेक्शन पर पेश आए खतरनाक हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। हादसा उस वक्त पेश आया जब लारी ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी। आज सुबह पेश आए उस हादसे में तेज़ रफ्तार रेडी मिक्स लारी ने एक्टिवा पर जा रहे शख्स को टक्कर दी। नतीजे में वो शख्स लारी के पहियों के नीचे आकर कुचला गया। पुलिस ने लाश को मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया है। महलूक शख्स की शिनाख्त न हो सकी। पुलिस मसरूफ़े तहक़ीक़ात है। एक साबिक़ अमरीकी सफ़ीर का दावा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। डॉन शेपिरो ने, जो साबिक़ में अमरीकी सफ़ीर की हैसियत से इसराइल में खिदमत अंजाम दी हैं, ये दावा किया। वो बाराक ओबामा के दौर में अमरीकी सफ़ीर बराए इसराइल थे। उन्होंने कहा कि आने वाले हफ्तों में आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को कत्ल करने की कोशिश की जा सकती हैं। वाज़ेह रहे कि आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने ईरान में तशद्दुद मुज़ाहरों और कत्ल के वाक़यात में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया है। इसी दौरान ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान के रहबर आला अली ख़ामेनी पर कोई भी हमला मुकम्मल जंग की वजह बन जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरानी अवाम की मुश्किलात और परेशानियों की असल वजह अमेरिका और इसके इत्तेहादी हैं, जिन्होंने तवील अरसे से ईरान पर गैर इंसानी पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं।